Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. We are meeting after a long time due to some periodic test and all. Okay, so let us start the next topic. Earlier, we have completed nomenclature of coordination compounds. So, today we will discuss the bonding in coordination compounds. Bonding was before that isomerism is also there in the chapter, but isomerism is not included in the session 2020-21. So we will not discuss the isomerism. We will move towards bonding in coordination compound. The concept of bonding of coordination compound was first given by Werner, as we have seen that in Werner's postulate also. But it has lot of limitations, so that there is need of another theories. Okay, so there are three more theories which explains the bonding of coordination compounds. The one is valence bond theory, the next one is crystal field theory, and the third one is ligand field theory. It is also known as molecular orbital theory. These three theories are there, in your book we will discuss the valence bond theory and crystal field theory in detail. Okay, so let us move first towards valence bond theory. What is it? Actually, this theory was given by Pauling. You know this name. This is very renounced name in chemistry. It is also given the concept of electronegativity and all. So this theory was also given by Pauling, and it explains bonding in terms of hybridization of central metal. In the coordination sphere, there is the central metal, and the ligands are surrounding the central metal with some bonds that are coordinate bonds, and for that they are donating the lone pair of electrons, and the metal is accepting the lone pair of electron and forming coordinate bonds. ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वो सेंट्रल मेटल जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जानते हैं. देयर इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. देयर इज n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल एंड nd ऑर्बिटल. ठीक है, तो ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं दे परफॉर्म द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री सच एज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर्स और दैट. ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये थ्योरी. ठीक है, ओके, just have a look of this table number 9.2. What does this table say? It says something about the coordination number and type of hybridization and distribution of hybrid orbitals in space. What is it? बच्चों, आपको याद होगा जब हमने क्लास 11th में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते थे. वहाँ पे हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से कैलकुलेट करते थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने अपने अर्लियर लेक्चर्स में बताया आपको. सिंपली इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल in which have a role in bonding. ठीक है, तो अब सेंट्रल मेटल से जितने लिगेंड अटैच्ड है, अगर वो सिंगल मोनोडेंटेट लिगेंड है तो सीधे सीधे 1 काउंट होगा. अगर वो बाईडेंटेट है तो वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 काउंट होगा. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको बताया है. आप कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा, और उसके बाद हम उसकी ज्योमेट्री का भी पता कर सकते हैं. ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा कहती है. तो अभी मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे 4 to 6 से स्टार्ट किया है, पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन ऑल्सो बी 2. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, क्योंकि d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं है ना. sp 1s 1p. ठीक है, तो 2 हो गए ना, तो इट्स शेप विल बी लीनियर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 11th में. ठीक है, दिस इज e. देन if the coordination number is 3, it will be sp2 and the geometry will be trigonal planar. ठीक है, ये हमने क्लास 11th में ऐसा पढ़ रखा है. कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट में भी ये सेम है. ठीक है, तो 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्विंग, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो 3 ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्विंग होगी, 1s and 2p, दैट इज sp2, एंड द स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लानर.
ठीक है, अब आते हैं 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ? If it is 4, we know the type of hybridization should be sp3 and sp3 is tetrahedral। ये हमें पता है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्लास 11 में ही पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ क्या आता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल की बजाय स्क्वायर प्लानर भी ज्योमेट्री हो सकती है। स्क्वायर प्लानर लेकिन कब होगी? जब इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, मतलब n-1 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, हम लोग जानते हैं। उसके बाद ns ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब इस n शेल का np और nd भी है, लेकिन वो वैकेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार फिल्ड भी हो सकता है, कई बार वैकेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये n-1 डी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया इन हाइब्रिडाइजेशन, तब हम लोग इसको तब हम यहाँ से p का 2 ही ऑर्बिटल लेंगे और s का एक ऑर्बिटल, और तब हमारी ज्योमेट्री हो जाएगी dsp2। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है, 3 + 2 1s 2p एंड 1d, कितने हो गए ऑर्बिटल? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 4 है, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो गई क्योंकि यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, dsp2 हो गया, ठीक है। और तब ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की। इफ़ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 5 देन जो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ये 4 ऑर्बिटल्स हो गए, देन d, ठीक है। 5 में भी वेरिएशन हो सकता है, sp3d एंड देन dsp3, ये भी हो सकता है, पर आपकी बुक में वो नहीं है कोर्स में, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप 5 के लिए सिर्फ एक ही ज्योमेट्री दी हुई तो हम एक ही मानेंगे, ठीक है। sp3d, ये भी dsp3 हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको 4 के केस में बताया, पर आपकी बुक में इतना ही है, तो जितना हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी है हम उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ज्योमेट्री sp3d एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। हम ये सब शेप हमने पढ़ रखा है, हम जानते हैं ये शेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, अगेन देयर इज वेरिएशन। मतलब वेरिएशन कहाँ आ रहा है? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, इसका मतलब देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 6 ऑर्बिटल्स। 6 ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ sp3 d2, दिस 4 एंड दिस 2, 6 हो गए, है ना। अब ये 6 ऑर्बिटल्स sp3d2 होगा, तो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पे ज्योमेट्री विल ऑलवेज बी ऑक्टाहेड्रल। हमने पहले भी देखा है शेप्स में, जब हम वहाँ देख रहे थे टाइप्स, जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने ज्योमेट्रीज़ के बारे में देखा है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है हमने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आप वो लेक्चर रिवाइज करिए, आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इन्वॉल्वमेंट हो गया जब ये डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तब ये ज्योमेट्री होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऑर्बिटल वैकेंट है, ये डी वैकेंट है, तो ये डी भी इन्वॉल्व हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, तब हमारी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तब हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, d2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6, ठीक है, लेकिन ये जो है वो d2sp3 हो जाएगा, और तब हमारी ज्योमेट्री, तब भी हमारी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ठीक है। तो हम इसको इसकी ज्योमेट्री में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन या डिफरेंट हो गया। इसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गया तो इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। कैसे इसको हम नेमिंग करते हैं? इफ़ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, मतलब n-1 डी वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं n-1 वाला अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लो स्पिन, ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन, इसको हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे बोलते हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अच्छा, अब ये इसमें इन्वॉल्व कौन सा डी ऑर्बिटल हुआ है? इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है। इफ इट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे केसेस में ज्योमेट्री, जो इनर डी ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होगा तो ज्योमेट्री हमारी d2sp3 होगी या dsp2 होगी, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल के केस में, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में, ठीक है। d2sp3 हो सकता है या dsp2, तो ये टेट्राहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। ये आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा, पर आप जब इसको करने लगोगे तो बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब जब आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है,
मतलब ND, यानी अगर हम 3D सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो अगर ये 4D वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 4D वाला ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन, देन इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन का मतलब ही है कि मैग्नेटिक मोमेंट से ये चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। और इस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम लोग आउटर डी, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटर डी, ठीक है, तो इसको हम लोग आउटर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर जैसे इसको हम लोग इनर डी कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं ना, उसको वो आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लो स्पिन और हाई स्पिन आपको समझ में आया होगा। दिस इज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, मेनली इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। Where coordination number is 6, the hybridization can be sp3d2 or d2sp3. If there is hybridization sp3d2, it means there is involvement of outer d, and this complex will be high spin complex and or it is also known as outer d complex, ठीक है। और if there is a hybridization d2sp3, it means there is involvement of inner d, and this will be the low spin complex or इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हाई स्पिन और लो स्पिन आपको ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बच्चों, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना ये ज़रूरी समझती हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, दैट्स वाई देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ अदर थ्योरीज, ठीक है, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड ऑल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। लेट अस सी फर्स्ट What are the limitations? Limitations भी आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। बहुत सारे एजम्पशंस है इसमें जिसका कि कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। वैसे तो ये पूरी थ्योरी मैग्नेटिक डेटा पे ही बेस्ड है। आपको जब तक मैग्नेटिक डेटा नहीं पता होगा आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो लेकिन अब उसका कोई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करना है ये हमें इस थ्योरी से पता नहीं लग पाता, ठीक है। द थर्ड वन इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कलर के बारे में भी कुछ नहीं बता पाता। एंड इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बता पाता। और इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में अगेन आपने देखा, मैंने आपको बताया ना कि ऑक्टाहेड्रल में हमें हाई स्पिन लो स्पिन तो पता लगता है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये जो है बहुत ज़्यादा क्लियर ये थ्योरी नहीं है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दिस इज़ द लार्जेस्ट और वी कैन से द स्ट्रॉन्गेस्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता। ये कुछ नहीं बता पाता कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, और ये इसका क्या इफेक्ट होगा सेंट्रल मेटल पे, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। आप जब भी लिमिटेशन लिखेंगे तो ये 5th और 6th लिमिटेशन और प्लस ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला लिमिटेशन था ये आना चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटिटी वाला इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस की बात मैंने पहले इसलिए की क्योंकि अब मैं आपको बता पाऊंगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें क्या पता नहीं लग पाता, ठीक है। लेट मी मूव टू द एग्जाम्पल। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बॉन्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वन इज़ ऑफ एन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड वन इज़ ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आई थिंक, हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। लेट अस लुक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज CO NH3 6 एंड द होल कॉम्प्लेक्स इज हैविंग चार्ज 3+, ठीक है। अब आपको यहाँ से CO का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है या इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, बहुत आसान है। अमोनिया इज न्यूट्रल, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो और 6 अमोनिया इन्वॉल्व है तो उससे हमें चार्ज निकालने में कोई मतलब ही नहीं है। उस पर जब वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब जो टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोबाल्ट, है ना। तो कोबाल्ट का चार्ज क्या हो जाएगा? +3, ठीक है। दिस इज देन कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, ठीक है। अब अगर कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो मैंने आपको जब डी ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको याद हो, इट इज़ 3d7 4s2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d7 4s2।
तो अब ये 3d7 4s2 है. नाउ दिस इज कोबाल्ट +3. मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सेस पे जो चार्ज होता है उसका उस केस में हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को निकालेंगे. एक्चुअली आई शुड राइट दिस CO3+, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब CO3+, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है. ठीक है, कोबाल्ट ने कैसे डोनेट किया है. अब अगर डोनेट किया है यानी +3 स्टेट में है तो d ऑर्बिटल इज हैविंग 5, d सबशेल इज हैविंग 5 ऑर्बिटल्स, है ना. 5 ऑर्बिटल का मतलब हो गया, अभी यहाँ 3d7 था यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देन द नेक्स्ट वन इज 4s2. ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब कोबाल्ट नॉर्मल स्टेट में था, मतलब आयनिक स्टेट में नहीं था, कोबाल्ट न्यूट्रल था. ठीक है, अभी जब इसमें 3+ चार्ज आ गया तो मैंने आपको बताया है कि S में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है लेकिन निकलता भी पहले. तो S वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, और कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये 3+ स्टेट है यानी 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव होना है. तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है बताइए, ये है दिस वन. तो ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये किसका है, कोबाल्ट 3+ का. ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा, यहाँ पे लिगेंड कौन सा इन्वॉल्व है, अमोनिया. 6 लिगेंड इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्टाहेड्रल, ये तो कंफर्म है. लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा या d2sp3, ये कैसे पता करेंगे. तो इसको पता करने के लिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखना पड़ेगा. दिस मॉलिक्यूल इज मैग्नेटिक और नॉट इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. ठीक है, इफ इट इज डायामैग्नेटिक इट मीन्स हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज पैरामैग्नेटिक इट मीन्स इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो यानी यहीं पे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होती है. ये हमें बता नहीं पाती कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका ऐसे हम कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देख करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देख के नहीं बता पाते कि हम ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी. इसके लिए हमें वी हैव टू लुक फॉर एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता लगता है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, इट मीन्स इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो तब हम वहाँ पे फिर अब आगे की बात कर सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा. ठीक है, यही चीज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्लियर हो जाती है. ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी उसके बारे में. तो अब हमें क्या पता लगेगा यहाँ, अब हम यहाँ देखेंगे अमोनिया लिगेंड यहाँ इन्वॉल्व है. अमोनिया के बारे में अभी मैं आगे बात करूँगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड. ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग करा देते हैं, वीक लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कराएगा. आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमें लिगेंड ये हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता लगती है, हमें ये चीज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं लगती. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये जान लिया कि ये मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिक है. इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के, ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे. ठीक है, लेट मी मूव फर्दर. ये आपस में अगर पेयरिंग कर रहे हैं तो फिर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है पहला वाला, सेकंड वाले की पेयरिंग हो गई इससे, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी. तो कुछ ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमारे ये 2 डी ऑर्बिटल फ्री हो गए. ठीक है, जो कि अब इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है, तो ये 2 अब हमें हाइब्रिडाइजेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 या d2sp3 हो सकता है. यहाँ पे इनर जो 3d, ये जो 3d का ऑर्बिटल है दैट इज़ फ्री, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है. तो यानी ये 3d वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा. तो पहले हमने ये d2, 2 डी ऑर्बिटल्स है ना, ये d2 प्लस 4s का s और 4p के 3 ऑर्बिटल्स यानी d2sp3 विल बी द hybridization of this molecule and it will be having octahedral structure. अब यहाँ पे inner d orbitals involve हुए and -1d के orbital involve हुए हैं ना, तो this is a low spin complex और inner orbital complex. ठीक है, मेरी बात समझ में आई. तो ये हो गया हमारा
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कहाँ पे कंफ्यूज किया? इसने हमें कंफ्यूज किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में। वहाँ पे हमें जब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी हम नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक में है। लेट मी रब दिस फर्स्ट। बच्चों आपको ना समझ में आए तो इसको बार बार देखिए, ये समझ में आ जाएगा। और जब मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी बता दूंगी तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इसकी बात कर ली, इसकी स्ट्रक्चर की। इट इज़ हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, डायामैग्नेटिक है क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको, ये sp3d3 लिखा हुआ है। दिस इज D2, ये भी sp3d2 ही होना चाहिए। अच्छा, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में, पर फिर भी यहाँ गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कोबाल्ट का ही है, COF6 3-, ठीक है। फ्लोरीन इज फ्लोराइड आयन इज हैविंग इज मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका अगर हम कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो क्या होगा? दिस दिस विल बी -6, 6 fluorine will -6 and the whole complex is having charge -3. Then the coordination number of cobalt will be x will be equal to -3 और ये इधर +6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी हैविंग +3। यानी अगेन कॉम्प्लेक्स जो है वो किस स्टेट में है? +3 स्टेट में है, ठीक है। और कोबाल्ट +3 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा। दिस इज 3d6 है ना, ये 3d7 4s2 में से s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, d का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस विल बी 3d6 और 3d6 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। हमने देखा था अमोनिया के केस में यहाँ पे पेयरिंग हो गई थी, लेकिन अभी इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगेन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ ये जो फ्लोरीन है, अब हमें फिर वी हैव टू गो फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब हमें फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से पता करना पड़ेगा कि हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे इसमें स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ देखें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट फ्लोरीन इज और फ्लोराइड इज वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग करा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड द ऑर्बिटल, और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते इनसाइड द ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लोराइड आयन इज वीक लिगेंड, तो यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी और यही स्ट्रक्चर रह जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि बहुत ही ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब आप देखिए, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करेंगे। अब आप देखिए ये 3D के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैकेंट नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व होंगे? हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हमें इस हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे? इस मेटल आयन का भी हमें इलेक्ट्रॉन और फ्लोराइड आयन का भी इलेक्ट्रॉन दोनों मिक्स होंगे और दोनों के ऑर्बिटल मिक्स होकर के मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दैट विल बी हाइब्रिडाइजर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन उसके लिए दोनों को कंप्लीटली वैकेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो वैकेंट है ही नहीं, है ना, तो ये यानी इनर डी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो होंगे कौन से इन्वॉल्व? क्योंकि 4th शेल स्टार्ट हो गई है तो 4s4p तो है ही, साथ ही साथ 4d भी तो फिर खाली पड़ी हुई है ना। तो अब ये वाला डी इन्वॉल्व होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसलिए sp3, ये s का 1, p के 3, 4 हो गए, 2 और चाहिए, तो sp3d2 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी ये आउटर डी इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4d वाला डी इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, जो मैं कह रही थी यहाँ गलत लिखा हुआ है, दिस इज sp3d3 लिखा हुआ है, यहाँ पे sp3d2 होना चाहिए, ठीक है।
आप अपने बुक में भी ठीक कर लीजिएगा। एंड दिस विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वही कोबाल्ट है, वही +3 स्टेट में है, लेकिन अमोनिया के साथ आने पे ये डायामैग्नेटिक हो जा रहा है क्योंकि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट परफॉर्म्स द पेयरिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एंड फ्लोराइड के केस में ये पेयरिंग नहीं करा पा रहा है, इस वजह से वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउटर डी इन्वॉल्व हो रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेम थिंग इज हैपनिंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप इस नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी पता लगा पा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर सब कुछ दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की क्या होगी। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं देती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें देखना पड़ता है। इस वजह से हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता लग जाएंगे, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें ये वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली बात कहाँ से पता लगेगी, ये हमें पता लगेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप देखिए यहाँ एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए आपको पता लग जाएगा इस सीरीज़ में जो भी लिगेंड इस तरफ हैं दे आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो लिगेंड इस तरफ हैं दे आर वीक लिगेंड। तो आप देखो यहाँ फ्लोराइड कहाँ है, फ्लोराइड इज़ वीक लिगेंड बट अमोनिया इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अमोनिया पेयरिंग करा देगा, तो पेयरिंग कराने के बाद भी कई बार एकाक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो अगर इस केस में ऐसा है कि एकाक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तभी वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पेयरिंग नहीं करा पाया तो यानी वो वीक लिगेंड है, तो उस समय पे हो सकता है उस समय पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाए या पेयर्ड हो, तो जो भी कंडीशन होगी वो पर्टिकुलरली डिपेंड करेगी सेंट्रल मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है, ये आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता लगता है। यहीं से हम उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन को ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए कोबाल्ट वाले और निकल वाला भी आप खुद से करके देखो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो पूछना। आप निकल के भी 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, क्लोराइड आयन के साथ और साइनाइड आयन के साथ। साइनाइड आयन के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला केस हो जाएगा, क्लोराइड आयन के साथ वीक लिगेंड वाला केस हो जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो मैं इसको डिस्कस करूँगी फिर। ठीक है, तो जितनी बातें मैंने बताई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में वो आपको लिखनी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ड्रॉ कर लीजिएगा, चारों एग्जाम्पल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। टुमारो आई विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।